Hello friends, how are you all? I am your friend Roshni and I welcome you on our YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. Friends, Jobs Junction is your one-stop solution to convert your dream into reality. And हमेशा की तरह we are back here with one more authentic and a very good opportunity for you all. So please be with us till the end of the video and also share the video with your friends, relatives and your loved ones so that they can also be notified about the vacancy. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी बड़ी वैकेंसी की। ये वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ पीसीएस है जो कि आई है पंजाब से। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज करा है नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ पीसीएस। सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ आपका सिलेक्शन होगा फॉर दी 2025। एक काफ़ी डिटेल नोटिफिकेशन है बिकॉज बहुत बड़ी पोस्ट है तो इसके लिए हर चीज़ अपनी सारी एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन मेथड हर चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने कैंडिडेचर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम लेट्स नो अबाउट दिस। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने स्टैब्लिश जो कि हुआ था अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ का उसका पर्पज है टू रिक्रूटिंग ऑफिशियल्स इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज पर द रिक्विजिशन सेंट बाय द गवर्नमेंट इन द रिकॉर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द प्रिलिमिनरी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ आपका प्रीलिम्स का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा 2025 का, विच इज टेंटेटिवली स्केड्यूल्ड फॉर अप्रैल 2025। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि अब नोटिफिकेशन आ गया है, अप्रैल 2025 में एग्जामिनेशन आपका स्केड्यूल्ड होने के चांसेस यहाँ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। एंड द एग्जैक्ट डेट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन दी वेबसाइट इटसेल्फ। टॉकिंग अबाउट द वैकेंसीज, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी जो पीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू फिल की जाएगी, दैट इज इन द पब्लिक पंजाब सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी 46 है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के लिए आपकी 17 वैकेंसी है, तहसीलदार के लिए 27, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए 121, फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर 13, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर 49, असिस्टेंट रजिस्ट्रार cooperative societies 21, labor cum conciliation officer 3, employment generation skill development and training officer is 12, and deputy superintendent jail grade 2 district probation officer is 13. So total there are 322 vacancies are there. So wish you all the best those who are preparing. Friends, preparation is very important and I hope already इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए आप सब ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके होंगे। And if you want to pump up your preparation, boost up your preparation, please you go and check our test series, Jobs Junction test series, where you can get for all the examination. One single enrollment will give you the access to all the examination test series. बहुत ही बेहतरीन test series है। You can also apply my coupon code JOBS20 to get additional 20% discounts, and you can share that with your friends also, and you can let your feedback known to us. So time limited time के लिए offer valid है, so do not miss the chance. Go and check. So what you need to note is the number of posts may be increased or decreased as per the government, and the Punjab Civil Service Rules 2020 issued by the Department of Social Security for Women and Child Development provide for 33% reservation for women of Punjab. So that you should know for all the posts, 33% reservation is for women. Candidates who apply under sports category should have graduation certificate as per Government of Punjab, Department of Personnel notification issued by the competent authority, and the candidates who are found ineligible at any stage of the recruitment process for not processing requisite document, that is sports graduation certificate as per the latest notification or etc., will be rejected, and such candidates will not be even considered in their basic category. So this is you need to remember. So these are few note points which you should remember. Tentative breakup of post. So अगर हम बात करते हैं category wise, we have seen the total number of posts, but as per category जो इनका distribution है that is given here. PCS में अगर हम बात करते हैं, PCS के लिए आपका जनरल के अंदर 71 है, वुमेन जो है उनका टोटल जो है हमारी यहाँ पे 14 है, जनरल में वुमेन के लिए 5 है, DSP के लिए 4 में से 1 फॉर वुमेन है, तहसीलदार के लिए 6 में 3 फॉर वुमेन है। सो दैट यू नीड टू टेक केयर। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन हियर, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। And apart from that, there are other things which you need to remember about talking about educational qualification. आपको ये चीज़ ऑलरेडी नॉलेज में है, टू गिव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। So candidate should possess a bachelor degree in any discipline from a recognized university or institution, provided that the candidates may be permitted
to take preliminary examination while studying for the qualifying degree. No candidate shall be eligible to take the main competitive examination, and no candidate shall be eligible for appearing in the preliminary competitive examination unless he or she has passed the matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory or elective subject, any other equivalent examination. That means पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन है, तो आपके पास पंजाबी एज अ लैंग्वेज होनी चाहिए, वेदर इन योर मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट लेवल के एग्जामिनेशन, वेदर एज अ मेन और एज एन इलेक्टेड सब्जेक्ट. तो ये आपका क्लियर होना चाहिए. आगे बात करते हैं एज लिमिट की. सो द एज मैंडेटेड बाय द पंजाब स्टेट सर्विस सिविल सर्विस कमीशन रूल्स के अकॉर्डिंगली यू शुड नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 37 मैक्सिमम एंड मिनिमम एज शुड बी 21. सो 21 to 37 आपका ईयर का यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है. Upper age limit may be relaxed up to 42 years for scheduled caste and backward classes of Punjab only in case of other services except Punjab Police Services and Punjab Prison Services. Upper age limit may be relaxed up to 45 years for Punjab Government and its Board Corporation Commission. Ex-servicemen of Punjab domicile shall be allowed to deduct the period of his services in the armed force of Union from his actual age, and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed by the direct appointment, in that case such a vacancy in the service rules concerned by more than 3 years he shall deem to satisfy the condition regarding age limit. And in case of the post of Deputy Superintendent of Police and Deputy Superintendent Jails, District Probation Officer in Punjab Police Service and Punjab Prison Service, so those who have attained the age of 21 years and should not have attained the age of 28 year on the first day of the year as referred to the above. तो सभी पोस्ट के लिए कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स होते हैं. मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, काफ़ी बड़ी लेवल की वैकेंसी है, पीसीएस लेवल की वैकेंसी है. तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका कैंडिडेचर बिल्कुल परफेक्टली सबमिटेड हो. The minimum pay admissible for the IBID post shall be as per the notification of Finance Department for 5/12/2020 के अकॉर्डिंगली आपका पे एडमिसिबल रहेगा. यहाँ पे स्कीम ऑफ PCS SCACE 2025, those who wants to apply have to fill an online application form using this link. Link has been attached in our description box also. And the scrutiny of application form shall be done after the conduct of mains examination, and during the process of scrutiny the application form and the other relevant document certificate etc of the candidates will be examined. Prelims के टाइम पे आपका मेन डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं होता है, आपका एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके टाइमली एग्जामिनेशन के लिए पहुंचना होता है. बट ड्यूरिंग मेन्स एंड after that your all the documents will be verified. Candidates may apply for the PCS CE 2025 by filling the online application form only online मोड से ही आपको करना है. जो आपका एसेंशियल स्टेप्स रहने वाले सिलेक्शन में प्रीलिम्स आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहेगा, मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहेगा, रिटन एंड इंटरव्यू आपका रहने वाला है. जैसे आपका नॉर्मली यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, किसी और स्टेट का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, वैसे ही आपका एग्जामिनेशन यहाँ रहेगा. सिलेक्शन जो रहेगा पेपर 1 में जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 200 मार्क्स का पेपर रहेगा. पेपर 2 में आपका 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. बोथ पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. CSET एग्जाम शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विदाउट नेगेटिव मार्किंग विद मिनिमम कट ऑफ 40 मार्क्स. इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, बट पेपर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है. डिटेल्स ऑफ सिलेबस आर इंडिकेटेड इन द अपेंडिक्स 2, आप चेक कर सकते हैं इसका सिलेबस. प्रोसीजर फॉर स्कीम फॉर मेन एग्जामिनेशन जो आपका है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको कंप्लीट ये गाइडलाइंस है, पेपर्स में क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले हैं, मार्क्स क्या रहने वाले हैं. एंड द जनरल स्टडीज सिलेबस स्पेशल एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री, कल्चरल, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ पंजाब इज टू बी इंक्लूडेड इन द मेंस एग्जामिनेशन. प्लीज नोट दिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये नोट करना चाहिए. डिटेल्स ऑफ सिलेबस अगेन इंडिकेटेड है आपके अपेंडिक्स में, सो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो ये थी आपकी कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है. अप्लाई करने के लिए बता दिया, आपको साइट पे जाना है. डेट्स आपको याद रखनी है. 31 जनवरी विल बी द लास्ट डेट टू फिल दी फॉर्म. 3rd to 31 जनवरी, 3 जनवरी से स्टार्ट होगी. 31 जनवरी 2025 विल बी दी लास्ट डेट. स्केड्यूल जो है आपका ये गिवन है यहाँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू शुड गो एंड फिल दी फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन के लिए. तो इसके अपार्ट जो आपके प्रिंट आउट्स एप्लीकेशन के रहेंगे, जो आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट रहेगा, फी पेमेंट का आपका प्रिंट आउट रहेगा, दैट ऑल यू शुड हैव विद यू जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि ये आपके आगे
काम आता है। ये पूरी लिस्ट है आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए वाइल अपलोडिंग। अपलोड करते वक्त आपके किस फॉर्म, किस तरीके से आपकी पिक्चर क्वालिटी रहनी चाहिए, क्या साइजेस हैं, वो सब भी यहाँ कंप्लीट बताया गया है। फी चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज आपके फी चार्ज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस सबके लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन फी फॉर दी एक्स सर्विसमैन एंड फॉर दी एक्स सर्विसमैन देयर इज नो फी। टोटल फी आपको 500 पे करनी है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से बिलोंग करते हैं देन आपको 250 एग्जामिनेशन फी के साथ टोटल 750 पे करना है। और अगर आप किसी जनरल कैटेगरी में देन आपको 1000 रुपीज एग्जामिनेशन चार्ज, टोटल 1500 पे करना है। एंड फी मस्ट सबमिट विद देयर एप्लीकेशन, तभी आपका कैंडिडेचर कंप्लीट माना जाता है और आपको इसका स्क्रीनशॉट रखना होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चेंज। और एडिट विल बी अलाउड आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। चेंजेस अगर आपके कुछ मिस्टेक हो तो अलाउड होता है। आपकी क्वालिफिक उसकी बात करें एसेंशियलिटी की, तो नेशनैलिटी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और आ टाइबेटन रिफ्यूजी जो भी इंडिया में आए हैं विद द पर्पज ऑफ बीइंग अ कंप्लीट इंडियन सिटीजन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज वाइज वी हैव डिस्कस्ड। एंड जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल्स, यहाँ आपकी जो जॉब है, यहाँ आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ के लिए आपकी मिनिमम हाइट फॉर मेंस एंड मिनिमम हाइट फॉर वुमेन गिवन है। एंड फॉर जेल्स जो बाकी आपके रहने वाले हैं कि आपकी लॉन्ग जंप, आपकी हाई जंप और आपकी रेस में आपका क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, सिलेक्शन के रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। फिर आपको कह रही हूँ एक बार आपको नोटिफिकेशन में गो थ्रू जरूर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ कंडीशंस हैं विच यू शुड टेक केयर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी एंड वील बी कीप कमिंग विद ऐसे ही और मल्टीपल वैकेंसीज के साथ। बट अंटिल देन फ्रेंड्स, please apply if you are eligible, or you can share this with your friends and your loved ones. And I hope you are connected to us on our Telegram and WhatsApp channel. In if any case you are visiting first time on our channel, kindly give us a like and subscribe, and that motivates us to come up with new opportunity and new information for you all. So I am thanking you all. I'll come up again and meet you all. Until then, keep learning, keep applying, keep growing. Thank you.